have you all decided the examples? Have you all written the examples so that we can discuss them? Yes, ma'am. Okay, starting from Yes, ma'am. culture. Starting from culture. Can I get examples from you all that what is the culture, like what actually the examples give you the concept of culture, that what exactly it is? Yes, ma'am. Okay, please go ahead. Tell me. Ma'am, I have written the example of Pashtun culture and their Okay. specific dance that is called as Atan. That is Their dance. Pashtun. Yes, ma'am. Their Okay. specific cultural dance that is called as Atan, and that is related with Pashtun culture. Atan. I've written. Okay. Yes, yes, and I've Okay. written that. Ma'am, Okay. I have written kind of a difference between what Pashtuns do at their weddings or their Eid celebrations and what other people do. For example, like Perfect. This is very good. Who's this? Can you please tell me your name? Amna Shakil. Okay, Amna, this is very good practice. If you're drawing up a comparison between one culture in Yeah. relation to the other cultures, this is actually the right approach that one So should talk in yeah, and sociology. I differentiated, like for example, when there is a wedding. So in most of the cultures, for example, if I give a culture of my place, that is from Waziristan, we celebrate only 2 days, that is Barat and Walima. And for example, if I compare it with the Hindu culture, or you can say Indian culture, at least not particularly Hindu, they also have like many celebrations like Mehendi and the Dolki and the Mai and all these things. So this is basically the difference in culture. Similarly, we have very differences in like the eating culture. For example, I read somewhere that in some cultures it is like a kind of culture, or it is their ethics that they have to finish what is like what do they have in their cup or their glass. But in some cultures they do not have to finish, and it is a gesture that they are like well fed if they leave some part of it in their glass. So this was a difference in the culture values and their culture practices actually. Very good example. I think you all should note this example which Amna has given. It is very relevant, and you should build what I would suggest you is to build a booklet or maybe like 2 pages or 3 pages in which you include all kind of examples which you get on your own from the Google or that other people are suggesting, because at times we do not have those ideas which other people gives us. So do note them as well. You can write them in your own words, but the idea can be taken by this. And I really like the way she has drawn up the comparison of Pashtun culture and their different things regarding their dance practices, regarding their eating habits, regarding their wedding habits, and comparing it with the rest. A psychiatrist perspective, a sociologist perspective, and a policeman perspective. So one really get the difference between what actually sociology is and how we should deal with the things. And it was Yes. a good thing for me. This the thing which you've told us now is relevant for the concept of sociology or for the definition of sociology, but as far as culture topic is concerned, because I can see some confused faces, so it is not relevant to this, right? So at the moment we're focusing on the culture and culture related examples. So it's very good that she has narrowed down the culture between the Pashtun culture, and then in Pashtun culture she has given like different examples of what kind of culture, what are the differences between the Pashtun culture, or you can say about the Punjabi culture regarding their wedding practices, regarding their eating habits. We Punjabi eat a lot of spicy food, whereas if you talk about Pashtuns, they do not eat spicy food. So this can be also quoted as an example. Then you can say you can Ma'am, quote I have some. also given another example that when you look at Bangladeshi eating culture, they you like for them their staple food is like fish. They like it's a kind of must thing for them. And if you look at Pakistani eating culture, then it's like it varies from province to province, and it varies from like a different, like Punjabi eat a spicy food and Pashtun do not eat such kind of spices or etc. So I have drawn such differences, like country wise difference as well. Absolutely. So here we see we have like plenty of examples regarding culture, because as I told you in the second class that culture, it does not only varies from country to country, it also varies within a country, from town to town, from province to province, from city to city. So if we think about the examples of culture, it can be like in any aspects. Even if you talk about food, you talk about the wedding habits, you talk about the sleeping habits, you talk about the working habits. So the
differ from every culture to culture. So you can show this comparison city-wise, you can show this comparison province-wise, you can show this comparison country-wise, any kind of a thing, or continent-wise, however, the way you want to do, you can do. So, this is a vast option which is available to you. An examiner and sociology is such a subject, it will not restrict you to a particular place. You can go wherever you want to go. You can quote examples of Maldives, why not? Okay, and you can quote example of any culture. So this is the very positive part of this subject. And that is why I say that you need to have a lot of examples. So now you all can feel SC food वगैरह के examples तो हमें within पता है कोई different example मुझे बताओ. मैं एक बता दूं. One by one, please raise your hand. मैं सबके नाम लेती जाती हूँ, मुझे बोलते जाओ. Raise up your hand. Urva, दें आप. मैम when I was in Nepal for 4 years almost, तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम था कि मतलब वहाँ पे बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा थे और इंडियंस भी, और उधर जो है ना वो हिंदुज़म बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत. नो मैम, नेपाल, ओके, नेपाल जी. और वो वहाँ पे उनका ये सिस्टम था कि वो लोग जो है वो फजर से थोड़ी देर पहले ही उठ जाते थे और उठ के सबसे पहले वो लोग पूजा करते थे, और पूजा करने के बाद उनका जो है वो मतलब वो दे यूज्ड टू क्लीन देयर हाउसेस एंड देन दे यूज्ड टू गो फॉर वर्क, एंड बिफोर दैट दे कैन नॉट गो फॉर वर्क. इट वाज लाइक देयर रिचुअल ट्रेडिशन. एंड देन आई कंपेयर देमसेल्फ विद माइन कल्चर. लाइक हम लोग भी जल्दी ही उठते हैं, बट हम लोग मुस्लिम्स होके लाइक हम लोग लेट उठते हैं, फिर उसके बाद समटाइम्स हम फजर पढ़ते हैं और समटाइम्स हम छोड़ देते हैं. सो ये एक हम लोग का डिफरेंस है कि वो लोग 4 टाइम्स मील खाते हैं और हम लोग सिर्फ 3 टाइम्स खाते हैं हार्डली. वो लोग जल्दी उठते हैं और वो सब ऐसे ही हैं, नेपाली सब ही ऐसे हैं. 4 टाइम्स मील खाते हैं, फजर से थोड़ी देर पहले उठते हैं, सनराइज करते वक्त they used to do पूजा like sunrising के वक्त, और उससे पहले ही सारे घर वाले उठ जाते हैं, और it's impossible कि अगर कोई भी एक मेंबर सो रहा हो. So this can be one example. This is very important example. पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत यूनिक एग्जाम्पल है. ये मेजोरिटी लोगों को, इवन एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा. तो when you would quote it, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा. बिकॉज नेपाल के एग्जाम्पल, मैं डाउट करती हूँ कि जो भी पेपर में लोग बच्चे अपीयर होंगे वो कोई नेपाल की एग्जाम्पल देंगे. तो आपने खुद मैम क्योंकि मैं वहाँ पे 4 साल रही हूँ, सो इसलिए मुझे बहुत डिटेल में ये पता है. अच्छा, आप इसको कोट कर सकती हो. हाँ जी, अफगानिस्तान की कौन बात कर रहा है? मैम वो मैं ये कह रही थी कि उनके कल्चर का एक ये पार्ट है कि व्हेन देयर इज अ वेडिंग ऑफ अ गर्ल, तो वो जब गर्ल की शादी करते हैं तो उनका लाइक ये एक मस्ट है, जो काबुल जलालाबाद साइड वाले लोग हैं, कि दे आस्क फॉर सम मनी. मतलब वो जिस तरह बेचना नहीं होता उस तरह का उनका एक सिस्टम है, रिचुअल है. और जो अगर हमारे साइड पे देखा जाए तो हमारे साइड पे वो डॉवरी मनी होती है, वो दूसरी तरह का होता है, और अफगानिस्तान पे दूसरी तरह का होता है. तो मैम ये भी कल्चर है उनका एक तरह से. यू कैन सी कि आप कहोगे कि डाउरी का कल्चर ही ले लो. तो इन आवर सोसाइटी वी गिव थिंग्स, ठीक है, whereas if we talk about Afghanistan, they give money before marriage to the groom and his family. बिल्कुल ठीक है, अच्छी एग्जांपल है. Farba, now you have a question again. You've raised up your hand. Share an example with you. That they actually in Karachi, whenever the Quran of them, they stand in reverence of it. They give it to the Holy Quran whenever it comes in front of them. This is something. Is she audible? Farba is audible to you one? No ma'am. Okay, by the time हम किसी और की ले लेते एग्जांपल. यहाँ पे हिरा ने मेरे ख्याल से हैंड रेज किया हुआ था. अस्सलाम वालेकुम मैम. मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स अपने रोल डाउन की हुई थी. वो मुझे पता नहीं था कि पहले मेरे से किसने क्या एग्जांपल्स दे रही है, लेकिन मैंने बेसिकली इंडियन कल्चर की एग्जांपल ली थी. उसमें जो कुछ विलेजर्स हैं जिन्हें हमने पहले सोशियोलॉजी में भी स्टडी किया हुआ है कि वहाँ पे एक रस्म होती है वनी की रस्म, जिसमें वो जो होते हैं वाइफ को साथ जो है वो जला दिया जाता है. ये अभी भी उनके कुछ इलाकों में ये जो फॉलो किया जा रहा है, और ये टोटली यूनिक है. उन लोगों में से कुछ को ये पता है, कुछ को नहीं पता. कुछ जो वहाँ पे लिटरेट लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम इसे फॉलो नहीं करते, लेकिन जहाँ पे कुछ इलिटरेसी है, वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कि बैकवर्ड एरियाज के लोग हैं, वो इसको अभी भी फॉलो कर रहे हैं. और इससे वो लोग बाकायदा एक उनकी प्रॉपर हिस्ट्री है, वो मतलब कि अगर सर्च करें आप लोग तो वो देखा जाए तो वहाँ पे अभी भी ये चीज फॉलो की जा रही है. वो उनके कल्चर बना है. बहुत अच्छी एग्जांपल है. थैंक यू मैम.
You're welcome. वहाँ पे वो लोग उस हिसाब से फैसले करते हैं अपनी टर्म्स के हिसाब से। बहुत तो अच्छी अपनी एग्जांपल है, वंडरफुल। आप इसमें ये कह सकते हो कहीं पे भी आप जस्टिस की बात करोगे ना, या कहीं पे भी आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करोगे, यू कैन कोट के द डिफरेंस बिटवीन द जस्टिस सिस्टम और द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सिस्टम बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इज दिस दैट वी हैव लाइक स्पेशल कोर्ट्स जो कि यू नो देते हैं जस्टिस, whereas वहाँ पे तो पंचायत सिस्टम है और जहाँ पे लीडर्स बैठ जाते हैं आपस में केस डिसाइड करने के लिए। बहुत अच्छी एग्जांपल है, दिस इज वेरी It's रेलेवेंट। also an example for like जो tribal areas हैं हमारे उधर भी यही होता है कि they do not go for like laws and जो जितने हमारे like for अभी example, ये बात इसलिए मैं ट्राइबल एरियाज की इसलिए बात नहीं करूंगी क्योंकि अब आप करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ोगे तो वहां आप लोग देखोगे कि आफ्टर 25th अमेंडमेंट, ठीक है, जो केपी फाटा yes मैम FCR खत्म हो गया है जी। एग्जैक्टली FCR खत्म हो गया है और उसके अलावा वहां पे अब एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट्स हो गया है बिकॉज वो केपीके के अंडर आ गया हमारे सारे ट्राइबल Yes. There are no more tribal areas. They are now part of Khyber Pakhtunkhwa, a separate province of Pakistan. और उनका भी equal, you know, right है जुडिशरी के ऊपर बिकॉज वहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट्स भी हो गया हुआ है और जाहिर है वो केपीके के अंडर आ गया तो केपीके का हाई कोर्ट और ये वो सब यूज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे ट्राइबल एरियाज पे इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, मगर हाँ इफ वी ड्रॉ अप अ कंपैरिजन विद अफगानिस्तान तो हाँ हम कर सकते हैं, ये वो तब ज्यादा रेलिवेंट लगेगा बिकॉज अब आफ्टर 25th अमेंडमेंट यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो चुकी है। yes मैम। कोई किसी और की कल्चर से रिलेटेड कोई एग्जांपल? अच्छा, तो कल्चर तो बहुत वास्ट सी चीज थी, तो इसमें तो लाइक यू वुड हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। अब जब हम बात करते हैं, जी हिरा मैम एक और भी एग्जांपल थी मेरे पास, वो थी वेस्टर्न कल्चर की कि कल्चर इज शेयर्ड। तो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड थ्रू लैंग्वेज इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी लेके आ रहे हैं। तो हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत ज्यादा मर्ज हुआ हुआ है। उनके क्लॉथ्स, हम के कपड़े हो जाएंगे, उनका टॉकिंग स्टाइल हो जाए, हम लोग ज्यादातर इंग्लिश बोलते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो हम आजकल के दौर में हम लोग ज्यादा जो है वेस्टर्न क्लॉथ को ज्यादा अहमियत देते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी कल्चर। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल रहेगी शेड, जहाँ कल्चर शेड की एग्जाम्पल आ रही है वहाँ पे ये जो शेड वाली एग्जाम्पल है इसमें मेरे ख्याल से ये वैलिड हो रहा है। दे सकते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। अमीर हमजा आप बताएं। जैसे भी पंचायत की बात हुई तो हम इसको अर्बन एंड वो रूरल एरिया में कर सकते हैं। जैसे इन कराची वी हैव लॉ एंड वायलेंस इन और इंटीरियर्स एंड वी हैव jirgas and big leaders, they sit and they decide things, so we can say that जी आप कर सकते हैं, दिस इज रेलेवेंट एग्जांपल आप कर सकते हैं। Okay, ma'am. आप कर सकते हैं कप्तान जी। मिसबा मैम यहाँ पर जो कल्चर शेयर की एग्जांपल हम लोगों ने भी शेयर किया है, इसके अंदर क्या ये भी एग्जांपल आ सकती है कि सब कॉन्टिनेंट में इंडिया और मुस्लिम एंड हिंदूज के दरमियान जो कल्चर शेयर हुआ था? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं कि अभी तक हमारे अंदर वो प्रैक्टिसेस क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में एक जमाने में ये लोग इकट्ठे रहा करते थे, तो वहां से हमने सीखी है। ऑल्दो अगर हम कहें हमारे रिलीजन में वो बातें नहीं है, तो ये एग्जांपल आप बहुत अच्छी है कल्चरल शेयर की आप दे सकते हैं। उपटन की Okay, मैम जैसे मैम हिंदू मुस्लिम कल्चर है, लाइक जैसे मुसलमान जो है ईद उल अजहा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो लाइक हिंदूज कल्चर के अंदर ये इसके बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं कि लाइक जैसे हम कुर्बानी करते हैं गाय की और लाइक वहाँ पे इस चीज लाइक तो है कि इस चीज को गलत माना जाता है। तो हाँ, वो ये कल्चर स्लॉटरिंग ऑफ काउ इसलिए अलाउ नहीं करते और उनको अच्छा नहीं लगता, वो अगेंस्ट जाते हैं बिकॉज वो काउ को वर्शिप करते हैं और हम खाते हैं। एग्जांपल दो मैं कि बताऊं? हम लोगों ने कल्चर लर्न किया, एग्जांपल दो ना मुझे। मैं बताऊं? जी हाँ, नहीं आप आमना आप रुकिए पहले, लेट अस स्पीक। आमिना बहादुर आप बताएं। यस मैम। मैम मैंने जो इसमें एग्जांपल कोट की थी ना वो ये थी कि जैसे मेरे क्योंकि ज्यादातर मेरे माइंड में सब कॉन्टिनेंट चल रहा था, तो उसमें ये था कि वुमेन जो मुस्लिम्स थी उनकी तो ड्रेस कोड उनका अलग होता था, बट विद द पास ऑफ द टाइम दे स्टार्टेड वेयरिंग साड़ी, और अभी तक कुछ पाकिस्तान में कुछ इलाकों में पहनी जाती है। इट्स नॉट मतलब लाइक वो वेरी लाइक कॉमनली नहीं कोई यूज करते, लेकिन कराची साइड एरियाज पे लाइक अभी भी पहनी जाती है, और इट्स अ काइंड ऑफ कल्चर जो अभी तक हम लोगों ने लर्न किया था अपने पास से, और अभी तक हमारे साथ अभी तक चल रहा है। परफेक्ट वेरी राइट। आपने जिस तरह एक तो वर्डिंग्स में एक्सप्लेन किया है ना रिलेट करके कल्चरल लर्न से, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, वेरी राइट। ये आपने अच्छी एग्जांपल दी है। या आप ये भी कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो फीमेल पॉलिटिशियंस अब नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो ये लर्न किया हुआ कल्चर है, वो सर पे दुपट्टा जिस तरह कैरी करती हैं,
it has been learned by Fatima Jinnah, by Benazir Bhutto. उन्होंने learn किया तो वो आज ही करें. This can also be quoted as an example. Okay, जी ma'am. परवा का hand अभी तक नीचे ही नहीं हुआ. जी आमिर हमजा. There is network issue. Am I audible to all now? Yes, you are. But now let Amir Hamza speak. Then you will speak. मैम हॉस्पिटैलिटी कल्चर जो होता है कि कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो जैसे हम अपने एल्डर्स को देखते हैं उनको रिसीव करते हुए, तो ये भी हमने मतलब देख के ही सीखा है. ये बहुत अच्छी बात है. और अगर हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो हमारे केपीके वालों की हॉस्पिटैलिटी ज्यादा अच्छी समझी जाती है. केपीके यस मैम. पर इसमें कल्चर लर्न की मैं आपसे एग्जांपल पूछ रही हूँ. इफ यू हैव दैट एग्जांपल तो बताएं. हम तो ये हम देख के सीखते हैं कल्चर लर्न, अपने बड़ों को देख के नहीं सीखते हैं. हाँ, ये आप कह सकते हो कि अगर हमारे बड़े हॉस्पिटैलिटी में ज्यादा अच्छे थे तो हम हमने उनसे लर्न किया. बिल्कुल ठीक है. अक्सा अब्बास आप बताएं. मैम मैंने लैंग्वेज की एग्जांपल कोट किया कि मतलब जैसे हम पंजाब में अगर हम रहते हैं तो हमारी लैंग्वेज पंजाबी है और सिंध में रहने वालों की पंजाब वो लैंग्वेज और होगी. जैसे ही वो अगर पंजाब में आते हैं तो वो पंजाबियों के साथ रहने लग जाते हैं. आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी तरफ देख के उनकी लैंग्वेज लर्न करते हैं. जैसे कि सिमिलरली आप ये कहोगे कि जैसे चाइनीज जो पाकिस्तान आ रहे हैं वो उर्दू सीखते हैं क्योंकि सीपेक पे काम कर रहे हैं. तो जो लोग पाकिस्तान की चाइना जाते हैं तो क्योंकि वो चाइनीज हमें समझ नहीं आती और वहाँ पे इंग्लिश चलती नहीं है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज और वो चाइना में नहीं चलती है, तो उन लोगों को पहले चाइनीज कोर्सेज करने पड़ते. वो चाइनीज सीखते तो वो एक कल्चर लर्न करते. एक अलग कल्चर में तो जाते ही जाते हैं मगर साथ वो एक कल्चर सीखते हैं जो कि उनका लैंग्वेज का कल्चर नॉन मटेरियल वाला है. तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे विलेज साइड वाले लोग होते हैं वो बहुत प्योर चीजें खा रहे होते हैं और जो हमारे सिटी साइड वाले होते हैं उन्हें इतनी प्योर चीजें नहीं मिलती. बता सकते हैं आप. बिल्कुल यू कैन कोट दिस थिंग. यू कैन कोट दिस थिंग. जी अक्सा आप बताएं. मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम इसको कंपैरिजन के फॉर्म में यानी कि एग्जांपल दे सकते हैं कि जिस तरह पुराने जमाने में जो फर्नीचर वगैरह बनाया जाता था उसके ऊपर जरा नक्शो निगार बनाते थे वो कलर वगैरह करके, तो अब जो है फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है उसमें इतना नहीं, जरा सिंपल बनाया जाते हैं. बिल्कुल आप कर सकते हैं. मैंने आपको कहा है कि जो भी एग्जांपल देंगे उसका कंपैरिजन ज्यादा ड्रॉ करेंगे वो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. चाहे वो आप टाइम पीरियड के तौर पे एग्जाम कंपैरिजन कर लें या कंट्री वाइज कर लें, सिटी वाइज कर लें, प्रोविंस वाइज कर लें, यू नो पर्सन टू पर्सन कर लें, तो यू नो दिस इज समथिंग व्हिच इज अप्रिशिएटेड. यू कैन डू दिस. सबा आप. ओके मैम. मैम एक और क्वेश्चन है कि जिस तरह फूड के हवाले से है कि जिस तरह पहले जो है वो लोग ज्यादातर सिंपल खुराक खाना पसंद करते थे लेकिन आज के दौर में फास्ट फूड जो है वो ज्यादा इन है, तो ये भी एग्जांपल हो सकती है इसकी. जी हो सकती है. दिस कैन आल्सो बी एग्जांपल ऑफ मटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर. उसके अलावा सबा आप पूछें. मैम हम ये एग्जाम्पल कोट्स कर सकते हैं जैसे कि मुस्लिम जो हैं वो बिलीव इन अल्लाह करते हैं जबकि हिंदूज हैं वो इस तरह से नहीं है. हाँ, तो बिलीव्स मैंने आपको कैटेगरी दी. नॉन मटेरियल कल्चर में आएंगे तो आपके जितने भी बिलीव्स होते हैं, चाहे वो रिलीजियस बिलीव्स हो, सोशल बिलीव्स हो, पॉलिटिकल बिलीव्स हो, व्हाटएवर, या नॉर्मल आपके बिलीव्स हो, दे वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर. आप इसको कोट कर सकते हो कि उनका कल्चर है, उनका नॉन मटेरियल कल्चर हिंदूज का है आइडल वर्शिप करना. ठीक है. एंड दैट इज, और हमारा नॉन मटेरियल कल्चर है कि वी वर्शिप अल्लाह. ठीक है. एंड देयर इज वन गॉड. तो दिस इज नॉन मटेरियल कल्चर क्योंकि ये हमारा बिलीफ है और इसमें आप फिर बिलीफ के एस्पेक्ट से बात भी कर सकते हो क्योंकि ये हमारा बिलीफ है. सो दैट इज व्हाई हमारा ये नॉन मटेरियल कल्चर इस कॉन्टेक्स्ट में है. ओके. दैट इज अबाउट रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ कल्चर्स. ठीक है. बहुत अब गौर से आप लोगों ने सुनना है कि फंक्शंस ऑफ कल्चर आपके मल्टीपल होते हैं. ठीक है. तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है दैट यू हैव टू डिफाइन अप अ सिचुएशन. ठीक है. तो डिफाइन अप अ सिचुएशन में आ जाता है कि फंक्शन ऑफ कल्चर इज टू प्रोवाइड मेनी साइंस एंड सिंबल्स व्हिच हेल्प पीपल टू डिफाइन अ सिचुएशन. तो सबसे पहला फंक्शन मतलब कि अगर हम कहें कि कल्चर एग्जिस्ट क्यों करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, तो उसका सबसे पहला फंक्शन होता है कि वो हमारी हेल्प करता है एक सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए. और कल्चर किस तरह एक सिचुएशन को डिफाइन करता है? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स या साइंस. वो ऐसे कोई साइन या सिंबल्स पोर्ट्रे करते हैं. जितनी भी अभी आपने एग्जांपल्स दी हैं आप उसको यहाँ पे रिलेट कर सकते हो कि डिफाइन कल्चर डिफाइन सिचुएशन से रिलेटेड कि मतलब कि कोई ना कोई सिंबल हमें देता है ना कोई हमें इंडिकेशन देता है कि जैसे आप कह रहे हो कि खाने के एक्शंस हमारे बदल जाते हैं या हमारी
ईटिंग हैबिट्स बदल जाती है, या हमारी हैबिट्स कोविड के अंदर बदल गई और हम SOPs को फॉलो करें, तो ये सब हमारे कल्चर ने एक सिचुएशन को डिफाइन किया है कि अब कोरोना एग्जिस्ट करता है, कोविड एग्जिस्ट करता है, वी नीड टू वेयर मास्क, वी नीड टू इंश्योर दैट वी आर फॉलोइंग ऑल SOPs। सो दिस इज एज पर द सिचुएशन, और हमारे कल्चर ने इसको डिफाइन किया है, क्योंकि हमारे कल्चर में एक ये रेगुलर नॉर्म बन गई है कि हमने मास्क पहनना है, वी डू नॉट हैव टू शेक हैंड्स, हमने सैनिटाइजर यूज करना है। ये कल्चर ने इस सिचुएशन को डिफाइन किया है थ्रू डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स, और इस वजह से हमारा ये कल्चर का ये एक फंक्शन है, वो डिफरेंट साइंस और सिंबल्स के थ्रू एक सिचुएशन को डिफाइन करता है, फिर हम उस पर अमल करते हैं, ठीक है। तो ये डिफाइंड सिचुएशन इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कल्चर, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि वेदर अ सिचुएशन इज फ्रेंडली और हॉस्टाइल, ठीक है, ये आपको साइंस या सिंबल से पता चलेगा। अगर कोई गुस्से में बैठा हुआ है, सो वी वुड अंडरस्टैंड कि माहौल अच्छा नहीं है, हॉस्टाइल सिचुएशन है बिटवीन दोज पीपल, क्योंकि वो गुस्से में बैठा हुआ है। अगर हमें जैसे हम कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि कोई अग्रीमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वेदर इट इज गुड और बैड, वो करेगा कि नहीं करेगा, हमें उसके जेस्चर से आइडिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कल्चर हमें वहां पे डिफाइन कर देगा सिचुएशन को, सिचुएशन है क्या, कोई भी चीज डिजायरेबल या अनडिजायरेबल है। जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ हमारा बीइंग मुस्लिम एंड इन पाकिस्तान, ये हमारा अनडिजायरेबल है कि हमने ड्रग एडिक्ट नहीं होना, ठीक है। तो ये हमारा, क्योंकि कल्चर ने सिचुएशन डिफाइन ऑलरेडी की हुई है, तो इस वजह से हमें पता है कि ये सिचुएशन हमारे लिए डिजायरेबल है या नहीं है हमारे लिए डिजायरेबल। जी शाहजेब। ओके आमना, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैम मैं ये कह रही थी कि इसमें हम ये एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि एक पश्तून कल्चर में क्या होता है कि एक जेस्चर होता है, पीस का जेस्चर, कि वो एक बहुत बड़ा स्टोन उधर लगा देते हैं जब वो रिजॉल्व, एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है। फिर अगर उसको कोई हटाता है तो वो जेस्चर होता है लाइक कि उन्होंने अब फाइटिंग करनी है, या वो बहुत रेलिवेंट एग्जांपल है कि वो सिचुएशन कैसे डिफाइन करते हैं कि ये मसला अब रिजॉल्व हो गया है, वो बोर्ड लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि वो उनका कल्चर है और वो एक सिचुएशन डिफाइन करता है। सो दिस कैन बी कोटेड, वेरी नाइस। सेकेंड फंक्शन ऑफ कल्चर इज दैट कि कल्चर आपको प्रोवाइड करता है बिहेवियरल पैटर्न। बिहेवियरल पैटर्न होता क्या, अगर मैं आपसे नॉर्मल बात में पूछूं, नॉर्मल जुबान में आपसे पूछूं, वो ये होता है आपके इखलाकियात, ठीक है, आपने क्या बिहेवियर ऑप्ट करना है और क्या आपने बिहेवियर नहीं ऑप्ट करना, ठीक है, ये आपके बिहेवियरल पैटर्न्स में आ जाता है। तो कल्चर का फंक्शन ये भी, और कल्चर इसलिए भी एग्जिस्ट करता है कि वो आपको बिहेवियरल पैटर्न प्रोवाइड करता है कि आपने कौन सा हरकत या कौन सा एक्शन या कौन सा बिहेवियर अडॉप्ट करना है और आपने कौन सा नहीं अडॉप्ट करना, ठीक है। उसमें ये बात है कि कल्चर प्रोवाइड्स बिहेवियरल पैटर्न टू मेक सराउंडिंग मोर प्रेडिक्टेबल। अब इसमें इसका अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसमें इस वजह से वो कह रहा है कि बिहेवियरल पैटर्न वो इसलिए प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो सराउंडिंग है, हमारी इर्द गिर्द सोसाइटी का जो माहौल है, हम वो प्रिडिक्ट कर सकें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर जाऊंगी अपनी फ्रेंड्स को मिलने, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी वो मुझसे बहुत कॉर्डियली मिलेंगे, वो मुझसे बदतमीजी नहीं करेंगे, वो मेरे साथ एरोगेंट नहीं होंगे, चाहे वो कोई डॉक्टर हो या उनका कोई भी बड़ा से बड़ा स्टेटस हो, मगर मैं उनसे एक्सपेक्ट करूंगी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली पेश आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मुझे पता है कल्चर ने उनको एक बिहेवियरल पैटर्न दिया हुआ है कि वो तमीज से अपने दोस्तों के साथ पेश आएंगे। तो इसलिए मैं अपनी सराउंडिंग पहले से, आपका जो थर्ड आता है एलिमेंट ऑफ कल्चर, दैट इज बिलीफ। निक्योनिस ने उसको क्या डिफाइन किया कि स्पेशल आइडियाज और थॉट्स दैट पीपल होल्ड टू बी ट्रू। बिलीफ, हमारा बिलीफ क्या है, हम बीइंग मुस्लिम, हमारा बिलीफ है वननेस इन गॉड, वननेस इन अल्लाह, ठीक है, and to have faith in prophecies, peace be upon him, ठीक है। क्योंकि हम इस चीज को बिलीव करते हैं कि हमारा आइडिया, हमारा बिलीफ, हमारी ये थॉट ये ट्रू है, ये एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम मुसलमानों का ये बिलीव है। अगर और हिंदूज का बिलीव क्या है कि उन्होंने आइडल्स को वर्शिप करना है, उन्होंने आग को वर्शिप करना है, उन्होंने काउस को वर्शिप करना है, ठीक है। बिकॉज क्यों? उनके लिए ये आइडियाज और ये थॉट्स वो होल्ड करते हैं कि ट्रू है, उनके लिए एग्जिस्ट करती है चीज। तो आपके लिए जो भी कोई आइडिया या थॉट जो कि आप होल्ड करते हो कि ये ट्रू है, ये एग्जिस्ट करता है, तो वो आपका बिलीफ बन जाता है। तो ये बहुत सही उसने डेफिनेशन दी आपके बिलीफ की। Excuse me. Example, if you look about the belief, is that it is our belief that one should always speak truth. अब हम मुसलमानों को ये पता है, ये हमारा बिलीफ है कि अगर हम सच बोलेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, तो हमारे साथ अच्छा अल्लाह ताला करेंगे। और हमारा ये बिलीफ, अगर हम झूठ बोलेंगे, कोई गुनाह करेंगे, तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा, ठीक है। तो दिस इज आवर बिलीफ, राइट।
फिर पीपल, हमें ये भी पता है कि जो लोग वर्क हार्ड करते हैं उनको ज्यादा अजर मिलता है, वो कामयाब होते हैं। मैं आप लोगों को क्यों कहूंगी आप लोग वर्क हार्ड करो, तो आपके ज्यादा चांसेस है कि आप CSS में कामयाब हो, ठीक है, बिकॉज दिस इज माई बिलीफ, हम सबका बिलीफ है। देन अनदर थिंग इज दैट वो कहता है कि बिलीव्स आपके जरूरी नहीं है आपके रिलीजियस ही हो, बिलीव्स कैन बी सोशल टू। आप सोशली किन चीजों को होल्ड करते हो और किन आइडियाज को होल्ड करते हो, ये ट्रू है या नहीं है, या आपके बिलीफ सोशली भी सोशल एस्पेक्ट्स में भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको वर्क हार्ड करने की एग्जांपल दी, दिस इज नॉट फ्रॉम रिलीजियस एस्पेक्ट, ये आपके सोशल एस्पेक्ट में, ठीक है। तो बिलीव्स आपके पॉलिटिकल डोमेन्स में भी हो सकते हैं, सोशल डोमेन्स में भी हो सकते हैं, आपकी रिलीजियस डोमेन्स में भी हो सकते हैं। तो बिलीव्स आपकी वेरी कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली बिलीफ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो भी चीज जो आप समझते हो हकीकत में एग्जिस्ट करती है, या आप समझते हो कि वो ट्रू है, इट कुड बी एनी आइडिया, इट कुड बी एनी थॉट, दैट इज बिलीफ। जी अमीर हमजा। बिलीफ पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। क्या होता है? बिलीफ पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल भी हो सकते हैं आपके बिलीफ, कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल ऑपोनेंट्स क्या सोचते हैं डिफरेंट चीजों के बारे में, उन्होंने अपनी ऑपोजिशन के अगेंस्ट क्या टैक्टिक करनी है, ये उनका बिलीफ है, ठीक है। जैसे कि कोई भी हम कहो कि आजकल की जो ऑपोजिशन है उसका बिलीफ है कि उन्होंने गवर्नमेंट को हराना है, तो वो गालियां देना शुरू कर देंगे, दिस इज देयर बिलीव्स, ठीक है, क्योंकि उनको ये लगता है ये थॉट उनके लिए ट्रू है, एग्जिस्ट करती है, उनको लगता है वो इस टैक्टिक के थ्रू गवर्नमेंट को प्रेशर दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज देयर बिलीफ, दैट कुड बी बिलीफ, कुड बी पॉलिटिकल एज वेल। क्योंकि मैंने आपको वैसे ही ये सोशल की एग्जांपल यहाँ पे दे दी, क्योंकि मेजॉरिटी लोग समझते हैं कि बिलीफ सिर्फ होते रिलीजियस ही है, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बिलीफ सिर्फ रिलीजियस नहीं होते, बिलीफ आपके सोशल भी हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, क्योंकि बिलीफ्स आपकी थॉट से रिलेटेड होते हैं। कोई भी ऐसा आइडिया या थॉट जो आपको लगता है हकीकत में होगी और ये ट्रू है, वो आपका बिलीफ होता है, ठीक हो गया। फिर आपका फोर्थ एलिमेंट ऑफ कल्चर इज दैट कि सैंक्शंस होती हैं, ठीक है। सैंक्शंस क्या होती है? इट इज द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स दैट आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश सोशल कंट्रोल। बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है। सैंक्शंस क्यों आप लगाते हो? जैसे कि कोई इस सोसाइटी में अच्छा काम करेगा, हम उसको प्राइज देंगे, कोई बुरा काम करेगा, हम उसको जेल में भेजेंगे, हम उसको क्राइम कंसिडर करेंगे। तो सैंक्शंस होता है कि सवाब और गुनाह करने, जो आप अच्छा एक्ट करते हो और बुरा एक्ट करते हो, ठीक है, उसका कोई रिवॉर्ड आप देते हो। जैसे कि अल्लाह ताला भी हमें रिवॉर्ड देंगे, अगर हम अच्छा कोई काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें उसका अजर देंगे, हम जन्नत में जाएंगे, या हम इस वर्ल्डली लाइफ में भी अल्लाह ताला हमें ब्लेस करेंगे। मगर अगर हम कोई बुरा एक्ट करते हैं तो अल्लाह ताला ने भी सैंक्शंस दिए हैं कि हम जहन्नुम में खुदा ना खास्ता जाएंगे, या हमें उसकी सजा मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली सैंक्शंस होती है आपकी रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट होती है, जो कि आपको इस दुनिया में लोग भी देते हैं और वैसे आपकी रिलीजियस एस्पेक्ट से भी एग्जिस्ट करती हैं। और ये क्यों सैंक्शंस होती हैं? सोशल कंट्रोल मेंटेन करने के लिए। अगर आज हमने लॉ एंड ऑर्डर या रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए, हर कोई चोरियां करता जाएगा, हर कोई क्राइम कमिट करता जाएगा, तो ये सैंक्शंस का होना बहुत जरूरी है। और सैंक्शंस इसलिए वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ कल्चर है, क्योंकि सैंक्शंस होती हैं तो हमारा कल्चर ज्यादा प्री डिफाइंड हो जाता है कि लोगों को पता है उन्होंने चोरियां नहीं करनी, उन्होंने डाके नहीं डालने, बिकॉज दिस इज सैंक्शन, कि वो जेल में चले जाएंगे। लोगों को पता है कि उन्होंने ऑनेस्टी से काम करना है, क्यों? क्योंकि उनको पता है उनको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। एक एम्प्लॉय कोई प्राइवेट जगह पे काम करके उसको बोनस मिलता है, वो अच्छा काम इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, कि मुझे बोनस मिलेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अच्छे से पढ़ा रही हूँ, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जो मैंने चीजें एक्सपीरियंस की है वो आप लोग कर रहे हो, तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे होता है कि अल्लाह ताला मुझे इसका सवाब देंगे, मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। सो दिस इज अ सैंक्शन, ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ कल्चर। इसमें आपकी कुछ और एग्जांपल्स आ जाती हैं कि गिविंग स्माइल टू अ बेबी इफ ही डज राइट। बिल्कुल, बच्चे जब होते हैं हम उनको स्माइल करके देखते हैं जब कोई अच्छी हरकत कर रहे होते हैं, और वो अगर कोई बुरी हरकत कर रहे होते हैं, कुछ तोड़ रहे होते हैं, तो वी गिव देम एंग्री स्टेयर, तो वो वही रुक जाते हैं, वो डर जाते हैं हमसे, वो सैंक्शन होती है उनके सर पे, ठीक है। अनदर एग्जांपल, अनदर थिंग इज दैट कि सैंक्शंस आपकी जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी पॉजिटिव फॉर्मल सैंक्शन, एक होती है आपकी नेगेटिव फॉर्मल सैंक्शन। अब पॉजिटिव सैंक्शन की एग्जांपल ये है कि गिविंग प्रमोशन टू एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई एम्प्लॉय ऑनेस्ट है तो आप उसको पॉजिटिव सैंक्शन दोगे। और नेगेटिव सैंक्शन की एग्जांपल ये है कि एक एम्प्लॉय को आप जेल में भेजोगे उसके करप्शन चार्जेस पे। अगर कोई एम्प्लॉय करप्ट है तो आप उसको जेल में भेजोगे, इसलिए सैंक्शन लगाओगे ताकि दूसरों एम्प्लॉयज के लिए वो इबरत का निशान बने और दूसरे एम्प्लॉयज ये डिसऑनेस्टी और करप्शन ना करें। तो सैंक्शन एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। मैं आज अपने एम्प्लॉय को क्यों बोनस दूंगी, वो अच्छा परफॉर्म करेगा ताकि दूसरे एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छा साबित हो और उसके लिए भी एक सोशल कंट्रोल हो, क्योंकि अगली बार उसको और मोटिवेशन मिलेगी, वो और अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि उसको होगा मुझे और बोनस मिलेगा, मुझे और कमीशन मिलेगा।
ठीक है, और आज मैं क्यों अपने एक एम्प्लॉय को जो करप्ट होगा उसको जेल में भेजूंगी, क्योंकि ये दूसरे एम्प्लॉयज के लिए मोटिवेशन होगा कि वो बुरा परफॉर्म नहीं करेंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे, दे विल नॉट ऑप्ट करप्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो सैंक्शन सोशल कंट्रोल आपकी सोसाइटी में लाने के लिए, सोशल ऑर्डर आपकी सोसाइटी में लाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पे सैंक्शंस लगाएं। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ कल्चर, राइट। नाउ द ये कस्टम्स अगला एलिमेंट आ जाता है, वी विल डिस्कस दिस इन अनदर क्लास, क्योंकि आई थिंक यू हैव अ क्लास एक्चुअली। अगर आप नोटिस करो तो हमने ये एलिमेंट्स ऑफ कल्चर और ये वाली जो फंक्शंस ऑफ कल्चर बहुत नई चीजें आज पढ़ी हैं। ठीक है, तो इनके एग्जांपल सोच के लाना, बिकॉज वी वुड हार्डली स्पेंड 15 मिनट्स इन द नेक्स्ट क्लास फॉर देम, और हमने बाकी चीजें स्पीडीली करनी है और इनके क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करने हैं। आज हमने एग्जांपल्स पे इसलिए टाइम ज्यादा स्पेंड किया सो दैट थिंग्स गेट क्रिस्टल क्लियर टू यू। आपको लास्ट टाइम बहुत एग्जांपल ढूंढने में प्रॉब्लम हुई थी, बार बार मुझसे क्वेश्चन करे थे, इसलिए आज मैंने इस पे वर्क